Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Subject: Social Studies. Lesson: Our Country in the World. Section 1: Geography. For class 6 online class. So student, today we are going to read about social study, and this is the front page of the book. So all of you, please open your book or take the help of this section. Now this is chapter 1, section 1, Geography, Our Country in the World. The map below shows the continent of Europe, Asia and Africa. नीचे जो मैप दिया हुआ है ये बता रहा है आपको कि कितने बर्रे आज़म हैं यूरोप के और एशिया और अफ्रीका के. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north and South Asia countries to the east. I think very easy to understand about this location. कि पाकिस्तान जो है वो एक तरतीब से लोकेट हुआ है बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक के नॉर्थ में, एंड साउथ एशिया कंट्रीज टू द ईस्ट, और साउथ एशिया कंट्रीज जो हैं वो ईस्ट की तरफ हैं. Also note the location of Saudi Arabia in relation to the Islamic countries around it. What does this explain about the spread of Islam? Now you can see here is Pakistan with my cursor. You can see here. This is Pakistan, and this side is the Saudi Arabian, Pakistan, Muslim countries, and here you go, then you will find some different countries which are non-Muslim. So when the Islam started from Spain, Sham and other countries, and especially from Saudi Arab, so it started spreading with this situation as my cursor is going, you see, and this cover the whole Muslim countries with green, you can see here, and also, right, this is a map location about Pakistan and Muslim countries. Now we go. This is a map of the Europe, Asia, Africa land mass showing the Islamic countries colored green and the South Asian countries stripped. South Asian countries जो है वो strip के अंदर हैं और green कलर के अंदर जो है वो आपको नजर आएगा Muslim countries. Right? This is a introduction of Islamic countries in the world. Now we go to second page. Now you can see closer. So China and India and Pakistan, then Iran, Afghanistan, Kazakhstan, and here is Arabian Sea. This map shows the subcontinent and its neighboring countries. The subcontinent is largely shut off from the rest of Asia by deserts in the west. वेस्ट की तरफ, वेस्ट कौन सा इसमें यहाँ पर कौन सा पड़ेगा, ये नॉर्थ, देखिए ये लिखा हुआ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो वेस्ट की तरफ इस तरफ जो है आपको क्या मिल रहे हैं, डेजर्ट मिल रहे हैं, रेगिस्तान मिल रहे हैं, ठीक है, इन द वेस्ट. एंड द हिंदू कश पहाड़ियाँ मिल रही हैं, द कराक्रम एंड हिमालयस माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ. ये नॉर्थ की तरफ देखें, ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर ये सिग्नल है ना, ये रहा, ये यहाँ पर नॉर्थ के मिल रहे हैं. वहाँ पर जो है ना कराकोरम मिलेगा आपको, पहाड़ियाँ मिलेंगी, हिमालयास की, हिंदू कश मिलेगा. ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, दीज आर बिग माउंटेन्स, राइट, सीरीज ऑफ द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट किसे कहते हैं, ये देखें, ये नॉर्थ और ये वेस्ट इस लोकेशन में. तो ये देखें, ये इस लोकेशन में दे रहा है, ये लोकेशन, दीज आर द लोकेशंस के नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला एरिया, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ और ऊपर की तरफ. पाकिस्तान इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अच्छा, पूरे सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, ये इस तरफ, दिस इज पाकिस्तान. किस लिहाज से, सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से. ऑल थ्रू हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेवल रूट्स टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया हैव पास थ्रू इट बिकॉज ऑफ द पासेज थ्रू द माउंटेन्स. क्योंकि ये पहाड़ों से गुजरता है, इसलिए जितने भी तारीखी मामला हुए ये जरूर रास्ता बीच में आया. In the west, the Khyber and Bolan passes lead to Afghanistan and to Iran. ये पाकिस्तान के इस तरफ जो है, ये बॉर्डर पे यहाँ पर जो है ये पहाड़ी है जो ईरान की तरफ जाते हैं और अफगान की तरफ जा रहे हैं. जी ओके, ये उन्होंने बताया. ऑन टू प्लान सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप. सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाते हैं, सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ भी निकल जाते हैं. इन द नॉर्थ द हाई कंजराब पास 4,700 meters leads to China.
ये पूरा लीड टू चाइना की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ चाइना की तरफ है, ये पहाड़ी इलाके। दिस मैप शोज द साउथ एशिया कंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। साउथ एशियन कंट्रीज जो है, एशिया के साउथ में जो कंट्रीज हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये देखें सब कैपिटल लेटर में इन्होंने मेंशन कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये कहाँ है? ये साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर आ जाते हैं। अब ये पैनल देख लेते हैं। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन। हियर आर सम इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक अबाउट साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये अपनी डिटेल अपने पास रखें और लर्न इट और मेमोराइज इट, मे बी इट इज़ यूजफुल फॉर योर कॉम्प्रीहेंशन साइड। बांग्लादेश के बारे में बताया उन्होंने, इतने किलोमीटर है स्क्वायर। भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दीज आर द एरियाज इन किलोमीटर। इज इट ओके? ये साउथ एशियन कंट्रीज इन्होंने टाइटल पे दी दिया। दिस इज द सेकंड पेज। नाउ वी गो टू द थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर। हियर आर सम मोर इंफॉर्मेशन. You can listen my lecture, and if the picture is not clear, you can go through the book. You will enjoy also listening the book, watching the book, the pics of the book, and also reading. This is a relief map of subcontinent. A relief map shows usually by means of different colors. जब different color के साथ होता है इसको relief map कहते हैं. And here is a panel. ये पैनल है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लाइट ब्लू कौन सा कलर है, ग्रीन ब्लू में क्या होगा, डार्क ब्लू के अंदर क्या होगा, लाइट ब्लू में क्या होगा. सो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस. द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल. इट आल्सो शोज रिवर्स एंड लेक्स एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स. और जमीनी मालूमात, अर्थ की स्टडी को कहते हैं जियोग्राफी, राइट. तो जमीन पे दरिया भी आएंगे, झील भी आएंगी, उनकी मालूमात भी आपको रिलीफ मैप में मिलेगी. You can see that northern parts of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. Northern parts ऊपर का ये देखिए, this is the compass, these are the direction you must have studied. So north part पे ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है सारा. तो कौन से था ये कॉन्टिनेंट, जो एशिया का कॉन्टिनेंट है, जब ये नॉर्थ की तरफ जाता है तो 9,000 मीटर्स की तरफ है. लैंड बिलो 300 मीटर्स इज कलर ग्रीन, एंड दिस इज यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल एरिया बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफ फॉर क्रॉप्स. अगर 300 बिलो मीटर की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ आ जाए, तो आपको यहाँ पर जो है ये फर्टाइल एरिया, यानी यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है और फसलें उगा सकते हैं. डेजर्ट्स आर आल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजुअली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट, बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दैट दे आर ऑफ नो यूज फॉर फार्मिंग. डेफिनेटली आई थिंक आपको इतने अच्छे तरीके से पता है कि ये डॉट लगे हुए हैं, ये डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान. ये देखिए डॉट है यहाँ पर, डॉट जो लगे हुए हैं ना, ये रेगिस्तान है. ये देखिए यहाँ पर रेगिस्तान है. तो यहाँ पर तो आप फर्टाइल कर ही नहीं सकते, ना ही कोई कल्टीवेट कर सकते क्रॉप्स को. देन कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द वाटर in the northern part of the subcontinent come from the two great river system. northern part subcontinent के अंदर जो पानी आता है ज्यादातर वो आता है द इंडस एंड गंगास, दो गंगास से. द वैली ऑफ द रिवर गंगास इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया. जो गंगा जहाँ से बहती है वो वादी जो है ना बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत शानदार तरीके से होती है, बहुत अच्छे तरीके से. द लैंड इज लो लाइंग एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन. नीचे की तरफ जा रही है जमीन तो बहुत पानी है ताकि खेती बाड़ी की जा सके. दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस. यहाँ पर इंडिया की ज्यादातर प्लेस जो है वो कल्टीवेशन के लिए ली जाती हैं, राइट. अच्छा, देन वी गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ. द रिवर गंगास एंटर्स द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा in which the rivers are changing their course all the time. Much of this delta is in Bangladesh. The low-lying countryside floods almost every year when storms hit the coast in late summer, destroying crops and killing people and animals. Right, तो अब रिवर गंगा जो है ना वो एंटर होती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेल्टा इज अ प्लेस वेयर ऑल द रिवर्स कम एंड ज्वाइन द ओशन, राइट. तो उसको डेल्टा कहते हैं. तो इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स, अपनी लाइनें चेंज कर रहे होते हैं. दरिया यहाँ से पानी बह रहा था, अब दूसरी जगह से हल्का हल्का बहना शुरू हुआ. तो दरिया कई साल 10 साल पहले यहाँ पर बहता था, फिर उस तरफ बहने लगा हल्का हल्का. तो मच ऑफ दिस डेल्टा इज इन बांग्लादेश. ज्यादातर जो पानी बांग्लादेश की तरफ से गिरता है डेल्टा का,
समंदर में जाने के लिए, तो वो लो लाइन कंट्री साइड फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं हर साल व्हेन स्टॉर्म्स हिट द कोस्ट, जब तूफान जो है साहिलों को हिट करता है गर्मियों के मौसम में, और बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन। सब इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ स्मॉलर पार्ट और लेसर। सब माने होता है स्मॉलर पार्ट, छोटा हिस्सा किसी चीज का, कम वाला, राइट। व्हाई डू यू थिंक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड दिस? क्योंकि ये एशिया का सबसे छोटा पार्ट में आ जाता है, इसलिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर इसको डाल दिया जाता है, राइट। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। The Deccan is a plateau, high land above sea level. This is a fairly dry part of the subcontinent with about 1500 millimeter of rain a year. It is very warm and generally not very fertile for farming. अच्छा जी, ये एक जगह का नाम बताया है, जो लैंड की जमीन होती है उसको प्लेट्यू कहते हैं, और ये हाई लैंड कहलाती हैं, ऊंची ऊंची जगहें होती हैं और उसके बीच में वादियां होती हैं, और ये सी लेवल से ऊपर होते हैं, अबव सी लेवल, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर खुश्क रहते हैं, 1500 मिलीमीटर्स जहाँ पर बारिश होती है, और ये वार्म होते हैं, जनरली हॉट, और ज़्यादातर फर्टाइल भी होते हैं। शॉन बिलो इज अ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का रिलीफ मैप क्या होता है वो उसमें देखेंगे, नीचे दिया हुआ है। यू कैन सी दैट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं बहुत हाई हैं बाकी में। देयर आर यूजली कलर्ड वाइट इन रिलीफ मैप। कलर्ड, ये रिलीफ मैप में वाइट कलर दिखाया गया है, रिलीफ मैप, टू शो दैट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर दे आर कवर्ड इन स्नो। और ज्यादातर ये स्नो से कवर होते हैं हर साल। यू कैन ऑल्सो सी दैट लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट। ज्यादातर जो हिस्सा है इस मुल्क का वो रेगिस्तान में। इनफैक्ट ओनली अबाउट 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज सुटेबल फॉर फार्मिंग। तीन में से एक तिहाई हिस्सा जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत फायदेमंद है पाकिस्तान में। एंड मोस्ट ऑफ दैट नीड्स इरिगेशन। और ज्यादातर जो जमीन है उसको इरिगेट करने की जरूरत है। Much of the north and west of the Pakistan consist of very high mountains. ज्यादातर mountains है इसमें। There are lower but very dry mountains ranges in the west and southwest in Balochistan. In the more shattered valleys of these regions, fruits such as apples, grapes, oranges and apricots and are grown. It can be a question, ये क्वेश्चन बन सकता है। You have to take it very serious this paragraph, कि वो कह रहे हैं कि जो है माउंटेन्स हैं यहाँ पर, और बहुत कम जो है ड्राई माउंटेन्स, रेंजेस, यानी रेंजेस माने होता है सीरीज, वेस्ट की तरफ एंड साउथ वेस्ट की तरफ जो बलूचिस्तान के अंदर है। और ज्यादातर जो वादियां हैं वहां की, उस इलाके की, वो फ्रूट्स में क्या क्या उगाती हैं वो ये बता दी उन्होंने नाम। The western area of Pakistan is fairly high land which gets very little rainfall. Western side, ये इस साइड पे, ये जो साइड है ना वेस्टर्न है, मैंने बताया था ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मेरे कर्सर को देखिए, तो ये जो वेस्ट साइड है ना यहाँ पर, वो ये वेस्ट साइड का बता रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल से क्रॉप्स होती है, फार्मिंग होती है। पीपल हियर ऑफन हैव हर्ड्स ऑफ शीप। ज्यादातर लोगों के पास जो है ना भेड़ है, एंड गोट्स, बकरियां हैं। इन द ड्राइड सीजन, खुश्की के मौसम में, हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड फूड फॉर द एनिमल्स। उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है कि शायद जानवरों को कुछ खाने को मिले। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 4 इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू द पेज नंबर 5, राइट। इफ वी टुक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाकिस्तान along line A and B and C D, it would look like these drawing below. अगर जरा सा गौर से देखें तो आपको A से लेके ये B तक, यहां तक, ठीक है, और C से लेके D तक, ये देखिए यहां पर, तो ये थर्ड डेजर्ट, इंडस वैली, सलमान रेंजेस एंड तूबा काकर रेंज, these are the mountains available and are here in this map, right. ये this map is also very important। हो सकता है एग्जाम में दे दिया जाए और बताया, कहा जाए कि भाई नाम लिखिए, so you must know कि ये कौन सा रेंज दिखाया गया है। In the south are the desert of Sindh and Balochistan, the third desert which extend far into India, and the third desert in the Indus Valley. In the north of both Pakistan and India are the greatest mountain ranges in the world. These are the Himalayas in the east, which merge into the Karakoram and Hindu Kush ranges in the west. देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि पहाड़ी इलाके कहाँ हैं पाकिस्तान में। पेज नंबर 4 के अंदर, पेज नंबर 2 के अंदर भी बताया गया था, पेज नंबर 3 में भी बताया गया था। तो अब हम पेज नंबर क्योंकि 5 करने के लिए जा रहे हैं, और अगर चाहें तो पेज नंबर 4 पे भी यू कैन सी
कि जो ये बात कही जा रही है कि जो ये हिमालयाज रेंजेस हैं ईस्ट की तरफ, ये जाके मर्ज होते हैं कराकोरम रेंजेस पे। रेंजेस मीन सीरीज, पहाड़ों की तादाद लगातार, या हिंदू कच्छ से जाके मिलते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट इन माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, नेपाल के अंदर हाईएस्ट माउंटेन जो आपने देखा होगा दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। और इसकी जो इट इज 8,848 मीटर्स हाई, इज एक्चुअली ग्रोइंग सेवरल सेंटीमीटर्स अ ईयर बिकॉज द अर्थ क्रस्ट इज स्टिल मूविंग। अर्थ क्रस्ट, जमीन का जो नीचे का हिस्सा है वो क्योंकि मूव करता रहता है, तो ये कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाता रहता है हर साल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एरिया ऑफ पाकिस्तान आर इन द इंडस वैली। ज्यादातर जो खेती बाड़ी होती है पाकिस्तान की वो इंडस वैली की तरफ होती है। मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव इन द प्रोविंसेस ऑफ द पंजाब। ज्यादातर पॉपुलेशन उसी तरफ पंजाब की रहती है 55%, एंड सिंध की जो पॉपुलेशन है 30% 2006 की फिगर के मुताबिक। ऑलमोस्ट 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system that uses water from the river Indus and its tributaries. तो ज्यादातर इंडस रिवर से नदियां बनाई हुई, खींची हुई हैं नदियां, कैनाल जिसको हम कहते हैं, कैनाल सिस्टम है। तो उस नदियों से पानी लेते हैं और अपने खेती बाड़ी करते हैं और अपने इलाके को सरियाब करते हैं पानी से। दिस एरिया हैज ऑल्सो बीन वेरी फर्टाइल। ये एरिया भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, प्रोड्यूसिंग द बल्क ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ज्यादातर यहीं से प्रोड्यूस की जाती है। Now student, let's go to information. The bed of the Indus south of Punjab falls from only 75 meter to sea level on its 560 kilometer journey to the Arabian Sea. तो इंडस जो रिवर है वो पंजाब से गुजरता हुआ सिंध के अंदर आता है और ये इतने किलोमीटर जर्नी का सफर तय करता है और अरबियन सी में आके गिरता है। दिस मीन इट ड्रॉप्स अबाउट 13 सेंटीमीटर इन एवरी किलोमीटर, राइट। तो ये एक एवरेज उन्होंने बताया, राइट। So now student, this is the page of 5. Now we are going to page number 6. Are you ready? I hope you must be enjoying and trying to understand. If you do not understand, so you can repeat my topic and try to understand this topic so that it would be easy for you to memorize question answers and you will enjoy to learn about your own country. Let's go to page number 6. Now this is page number 6. Geographical terms. These are some terms that you will read about in geography. They describe the physical feature found on earth. अब जाहिर है ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी मीन टू स्टडी अबाउट अर्थ। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास माउंटेन्स आ जाते हैं। दीज आर द माउंटेन्स। माउंटेन्स की डिटेल वो बता रहे हैं आपको कि ये माउंटेन्स किस तरह से जमीन से ऊपर की तरफ गए। जाहिर है ज्योग्राफी के अंदर आएगा क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया टू स्टडी अबाउट अर्थ। तो दीज आर द हाइएस्ट लैंड, ये ऊंची जमीन कहलाती है। देयर इज नो फिक्स हाइट एट विच a hill becomes a mountain, but mountains are usually above 2,000 to 3,000 meters. Some mountains like the Himalayas or Karakoram are sharp on pointed. This means that in terms of geography, they are young mountains between 1.5 to 66 million years old. Older mountains have had their sharp points worn away by rain, frost and wind so that they are more rounded. ये देखिए कुछ शार्प हैं और कुछ राउंडेड हैं। तो ये माउंटेन्स के बारे में उन्होंने डिटेल बताई कि जो पॉइंटेड हैं और शार्प हैं तो उनके बारे में, ओल्ड और न्यू के बारे में उन्होंने डिटेल बताई। नाउ लेट्स गो टू हिल्स. These are lands above sea level but not as high as mountains. They are generally covered with vegetation such as grass, trees or farm crops or terraced field. ये hill कहलाती है. I think the picture will be clear. If you want to take the help, so you can also go through YouTube and take the help of hills in the world. So you will also enjoy. But Alhamdulillah, God has given us the geographical shape. So hills are also available in Pakistan as well. Now we go to the geographically plateau. These are the areas of flat land. ये बिल्कुल पतली जमीन होती है, सीधी सीधी, well above sea level. sea level से ऊंची होती है. Some plateaus are fertile. कुछ plateaus ऐसे होते हैं जो fertile यानी खेती बाड़ी की जा सकती है. While others are poor land. बाकी जो जमीन होती है वो poor होती है, यानी उस पर नहीं की जा सकती खेती बाड़ी. It depends on their height. height पे डिपेंड करता है. अमाउंट ऑफ रेनफॉल और रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि कितनी बारिश हो रही है इस प्लेट्यू पे. देखें ये शक्ल भी बता रही है आपको. Now let's go to page number 7. Now page number 7. Now this is plains.
देयर आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड, बिल्कुल फ्लैट होती है जमीन, सीधी बिल्कुल एट लोअर लेवल, नीचे लेवल की तरफ होती है। ये देखें नीचे लेवल से ये जा रही है ऐसे। सम आर एट सी लेवल, कुछ सी लेवल पे होती हैं और स्लाइटली हायर, जरा सी ऊंची होती हैं। द प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट एज दिस इज वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक्स प्लेस। देखें ये क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि प्लेन्स वो जगह होती है जहां पे देखें सब फर्टाइल किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट। डेजर्ट, दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट्स कैन ग्रो। There are hot deserts where the temperature is very high during the day. There is very little or no water, or else the soil is too poor for anything to grow. There are also cold deserts called tundra, where the climate is too cold for vegetation. These can be found on high mountain tops or in polar regions. ये रेगिस्तान कहलाते हैं यहाँ पर। अच्छा मैं एक और बात बताऊं कि चाइना का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, गोबी डेजर्ट कहलाता है, गोबी डेजर्ट। और चाइना ने अब क्या किया, वो गोबी डेजर्ट क्योंकि फैलता जा रहा था तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे आर्टिफिशियल फार्मिंग करवाई है कि उसके बॉर्डर पे, और उस गोबी डेजर्ट को वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा कर रहे हैं क्योंकि वो रेत उड़ती है तो वो इलाकों में आ जाती है, फिर फैल जाता है। तो वो उस बॉर्डर को कल्टीवेशन करके उसमें इरीगेशन कर रहे हैं और उसको फर्टाइल कर रहे हैं, सॉइल डालते हैं और आर्टिफिशियल फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि ये डेजर्ट फैले ना, वरना पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी दे आर फाइटिंग विद दिस गोबी डेजर्ट, राइट। लेक्स, झील, दीज आर इनलैंड सीज, ये तो कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स कैन हैव ईदर फ्रेश और सॉल्ट वाटर, राइट। आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू पेज नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट पेज. Before we go to through the next page, there is a one paragraph, rivers. This is flowing or moving water. These can be tiny streams or mighty rivers many kilometers wide. The water in river is fresh except for a short distance where they enter the sea. So rivers भी बन जाते हैं यहाँ पर, lakes भी बन जाती हैं। ये ज्योग्राफी है, अर्थ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। Then we go to the last page और ये हमारे पास आ गया estuary. एस्टुअरी क्या कहलाता है? दिस इज वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडन एज दे एंटर द सी. अब ये जो रिवर तो आ रहा था लेकिन अब ये चौड़ा हो गया, ये देखिए यहाँ पर, ये देखें ये चौड़ा हो गया, तो ये एस्टुअर्स कहलाते हैं। एस्टुअरीज कैन मेक गुड हार्बर्स फॉर शिप. ये यहाँ पर बंदरगाह बन सकती है, यहाँ पे शिप आके लग गई, इधर आके शिप लग सकती है और आसानी से हम इसको बंदरगाह बना सकते हैं, यानी जो सामान है, गुड्स हैं, वो उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं. डेल्टा, एज आई मेंशन्ड यू इन द लास्ट टॉपिक अबाउट डेल्टा, तो सम टाइम व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉल